بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے، رجب بٹ کو کیوں مارا؟ کیوں رجب بٹ کو مار پڑے؟ ایسا کیا کیا کہ وکلاء اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے اور رجب بٹ پر ٹوٹ پڑے؟ اصل کہانی آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ کرام کے بارے میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ صحابہ سے راضی ہیں، صحابہ اللہ سے راضی ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے اللہ تعالیٰ، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الراشدون۔ کہ تمام کی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی صفات اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میرے تمام کے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس کی بھی اتباع کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ چند ماہ قبل رجب بٹ، جو کہ شیعہ فرقہ سے تعلق رکھتا ہے، اس نے سیدنا امیر معاویہ، اتنے عظیم صحابی، کاتب وحی، جس کے خلاف زبان درازی کی، اور پھر کچھ نماز کے متعلق اور کچھ دین کے متعلق بھی غلط بیانیاں کی، تو جس پر وکلاء نے مقدمہ درج کیا۔ تو بات کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اللہ سے وہ راضی اور اللہ ان سے راضی۔ تو چونکہ اس بدبخت نے صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کی تھی، ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی تھی، ورنہ یہ کون ہوتا ہے ذلیل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ اس نے ایک رسول اللہ کی پاک جماعت، صحابہ کرام جیسی عظیم شخصیات پر زبان درازی کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت نے اسے دنیا کے اندر ہی وکلاء کے ذریعے ذلیل و خوار کر دیا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں جب اپنے صحابہ کی پاکی بیان کی ہے، تو کون ہوتے ہیں یہ لوگ صحابہ کرام پر زبان درازی کرنے والے؟ مقدمہ کچھ یوں ہے کہ اس نے یہ جب گستاخیاں کی تو وکلاء نے اس پر مقدمہ درج کیا، اور پھر اسے کچھ موقع بھی دیا کہ اپنے صفائی کے لیے۔ اس کے بعد یہ وطن عزیز پاکستان کو چھوڑ کر برطانیہ چلا گیا، اور پھر کچھ عرصے بعد برطانوی حکومت نے اس کا ویزا منسوخ کر دیا گیا۔ تو اب رجب بٹ کا کہنا یہ ہے کہ وکلاء نے مجھے کہا کہ آپ کا ویزا ہم نے کینسل کروایا ہے، تو اس پر رجب بٹ نے کچھ نازیبہ الفاظ وکلاء کے خلاف استعمال کیے۔ کراچی والے وکیل صاحب کی کہتے ہیں کہ ہم نے نام بھی ECL میں ڈلوا دیا، ہم نے پاسپورٹ بھی بلاک کروا دیا، ہم نے اس کو UK سے لاہور بھی بلا لیا۔ وکیل صاحب آپ کو بات ہوں، نہ آپ کی اتنی ورتھ ہے اور نہ آپ اتنے کیلیبر کے مالک ہیں کہ آپ مجھے UK سے لاہور بلا سکیں، آپ میرا پاسپورٹ بلاک کروا سکیں، آپ میرا نام ECL میں ڈلوا سکیں۔ فرسٹ آف آل میرا نام ECL میں نہیں PCL میں تھا، پاسپورٹ کنٹرول لسٹ، اور وہ ہماری اسٹیٹ نے ڈلوایا تھا، کیونکہ وہ رائٹ رکھتے ہیں۔ آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ یہ سارا کچھ کر سکتے۔ یہ جھوٹھی جو ہے نا وہ ڈیش بازیاں چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ مجھے تو آپ وکیل بھی نہیں لگتے، سمجھ لگی ہے؟ جو آپ کا گیٹ اپ ہوتا ہے، جس طرح سے آپ کتا ماوا کھا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، آپ مجھے وکیل بھی نہیں لگتے۔ اور پاکستان رجب بٹ آ پہنچا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ کل 29 دسمبر 2025 کو کراچی بار کونسل میں رجب بٹ پیشی کے لیے تشریف لاتے ہیں، اور وہاں وکلاء پہلے سے تیاری کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو ہی رجب بٹ آتے ہیں تو ان پر وکلاء وار کرتے ہیں، ان کو ان کی بولے نا
इधर है भैया, आपस में एक दूसरे को भाई हो यार। मुझे ये बताओ कि ये आपने गलत किया है, बिल्कुल गलत किया और वो एक बंदा जो बदमाशी करके ये वकील को जो थ्रेट कर रहा है, आप उनके साथ खड़े हुए, आपको काले को नहीं पता, आप गलत कर रहे हैं, आप हमारे मेहमान हैं, लेकिन इस तरह नहीं होता। बात है, मेरा ये अपना घर है, आपका घर है तो घर वालों का ख्याल तो करें। बहस करने आ गए हो, तुम आपने नहीं देखा किस तरह से क्या कर रहे हो आप इस तरह से? शायद आज हम कराची बाहर से वाकिफ नहीं है, बातें कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो? किस तरह गलत कर रहे हो? तुम सुबह सुबह जो है चार्ज करने आ गए, उस तरह तुम इलेक्शन करने आ गए हो, तुम्हारा ख्याल है किस तरह उसको जाने वो बंदा किस तरह थ्रेट कर रहा है, किस तरह थ्रेट कर रहे हैं? आप वकील हो यार, आप किस तरह की बता रहे हो? मैं यहाँ पे देखिए लेने का बात कर रहा हूँ, वापस आपका कोई जायदाद का मसला है, आप वकालत किस तरह की कर रहे हो? ये किस तरह की वकालत है? मुझे बताओ ये किस तरह की वकालत है? मुझे बताओ ये वकालत किस तरह की है? ये वकीलों को आगे 20 वकील जो है 20 वकील जो है वो आया, तुम उसके साथ बदतमीजी कर रहे हो, तुम सुबह सुबह बदतमीजी कर रहे हो, थ्रेट किस चीज़ पे कर? मुझे थ्रेट कर रहे हो तो पर्चा कराओ जाके, कराओ ना पर्चा, करवाएंगे, तुम सुबह सुबह बदतमीजी कर रहे हो, ये कहते हैं बरादरी का ख्याल करवाएंगे, वकालत है ये, बदमाशी है ये, बदमाशी कर रहे हो तुम, तुम लोगों ने पूरे पाकिस्तान में वकीलों को बदनाम कर रहे हो, वकीलों को बदनाम करते हो, तुमने सबकी गाड़ीबाजी का इस तरह काम शुरू कर दिया, सारे वकालत की पूरी वकला कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हो तुम लोग, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ये कोई वीडियो है तुम लोगों का? ये बच्चा जो है वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? आँख भी ज़ख्मी हुई है, यहाँ गर्दन भी ज़ख्मी हुआ है और कुछ और भी जगह चेहरा भी ज़ख्मी हुआ है। और फिर उनसे माफ़ी भी मंगवाई जाती है। माफ़ी रजब भट्ट से कहते हैं कि आप माफ़ी मांगो हमसे। सोशल मीडिया पर वीडियो मौजूद है, आप इस वीडियो के अंदर मुलाहिज़ा कीजिएगा। हाँ रजब भाई, कैसा हुआ भाई? सही है ना? अभी आप माफ़ी मांग रहे? नहीं यार बस आइंदा भाई नहीं करेगा। ठीक है, हमारी बात हो गई है तो इंशाल्लाह आइंदा ये जो है नानी वाला भी हमारे साथ है, आइंदा इंशाल्लाह जो ये नहीं करेगा। इसी वाला वकीलों के साथ चलो वकील साहब भी हैं और इनके साथ ठीक है, बात खत्म। देखो कि कैसा तशद्दुद किया गया। तो और फिर रजब भट्ट माफ़ी मांगकर वापस आकर उन्हीं वकला के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करता है। एक सवाल वकला से भी बनता है कि आपके पास इतनी ताकत थी, इतनी वसअत थी, जब इस बदबख्त ने सहाबाए किराम के ख़िलाफ़ ज़बान दराज़ी की थी तो उस वक़्त आपने इसको क्यों नहीं मारा, क्यों नहीं पीटा गया? और जब आपकी बारी आई, आपकी शख्सियत की बारी आई, आपको ललकारा तो आप मैदान में उतरे, उस पर वार कर दिया। तो अगर आप मज़हब को पहले रखते, सहाबा को पहले रखते और अपने आप को बाद में रखते तो बहुत ही अच्छा होता। और दूसरी बात कि अगर इसी चीज़ को मारने के बजाय आप इस पर कानूनी कार्रवाई करते अच्छे तरीक़े से तो इसको सख्त से सख्त और कड़ी सज़ा सुना दी जाती, क्योंकि आप वकला हैं, आपके हाथ में सब कुछ है, केस आपके हाथ में है। तो आप मज़हब के ख़िलाफ़ गलत ज़बानी करने पर, सहाबाए किराम पर तबर्रा करने पर इसके ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त मुक़दमा दर्ज कराते और फिर इसको जेल के अंदर लेकर इस पर जो भी कानूनी कार्रवाई होती वो होती, तो न आपको परेशानी होती और न किसी और को। अब चूँकि रजब भट्ट ने उन्हीं वकला के ख़िलाफ़ मुक़दमा भी दर्ज करवाया है।
यूट्यूबर रजब भट्ट की सिटी कोर्ट कराची आमद पर वकला से हाथापाई। रजब भट्ट की वकला के बीच बचाव की कोशिश। रजब भट्ट के खिलाफ हैदरी थाने में मुकदमा दर्ज है। रजब भट्ट मुकदमे में उबूरी जमानत पर हैं। इसी पर बात करेंगे। अब्दुल हसीब खान हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल हसीब खान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिटी कोर्ट कराची में कराची बार की जानिब से हड़ताल का ऐलान किया गया था और इसी के पेश नजर सुबह सवेरे ही वकला की जानिब से दाखिली दरवाजे बंद कर दिए गए थे। ताहम यूट्यूबर रजब भट्ट जो कि जो हैदरी थाने के मुकदमे में जो है वो अबूरी जमानत पर हैं और उनकी दरख्वास्त जमानत की आज समाअत थी, वो अपने वकला के हमरा सिटी कोर्ट पहुंचे हैं। तो इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक दाखिली दरवाजे पर जो है वो अंदर दाखिल होने के मामले पर जो है वो तस्कलामी हुई थी, जिसके बाद वकला जो है वो जानिब से मुबैना तौर पर जो रजब भट्ट हैं उनको पर जो है वो तशद्दुद किया गया है। उनके जो है वो जिसके बायस उनके कपड़े भी जो है वो फट गए हैं और जो बता रहे हैं लोग हमें वो यही है कि जो है वो इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो रजब भट्ट हैं और उनकी जो वकला हैं वो बीच बचाव की कोशिशें कर रहे हैं, जबकि वकला की बड़ी तादाद ऐसी है जो कि दाखिली दरवाजे पर मौजूद थी और जो है वो वकला की जानिब से रजब भट्ट पर जो है वो तशद्दुद किया गया है, जिसके नतीजे में उनके कपड़े भी फट गए और ये भी ऐलान किया है कि 3 लाख रुपए मेरे हाथ से छीने गए। तो अब परेशानी उनके लिए भी है कि 3 लाख रुपए भी हो गए और उनके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज करा दिया। तो कानून को अपने हाथ में लिया उन्होंने। तो अगर इसी चीज़ को कानून के दायरे में रहकर आप करते तो न इतना फसाद बर्पा होता और न कुछ और होता। तो अच्छा होता कि आप कानून के दायरे में रहकर इसके ख़िलाफ़ मुकदमा करते। तो अल्लाह ताला ने इन्हें ज़लील करना था तो ये एक सबब बन गया। चलो वो ज़मीन वैसे एक बात आ गई थी वकला के दरमियान कि उन्होंने मारा न पीटा, वो मेरा मसला नहीं है, वो उनका मसला है, जो कुछ करना है। लेकिन बताने का मकसद ये था कि जो भी शख्स रसूलुल्लाह की पाक जमात के ख़िलाफ़ ज़बान दराज़ी करेगा, अल्लाह ताला इस दुनिया में भी उसे ज़लील करेगा और आखिरत में भी उसे ज़लील और ख़ार करेगा, क्योंकि रसूलुल्लाह की तरबियत ऐसी थी कि उस पर शक व गुंजाइश नहीं। अगर उनके आपस के इख्तलाफात थे भी तो होते कौन हैं हम लोग कि उन पर ज़बान दराज़ी करें कि सैयदना अमीर मुआविया ये हैं या हज़रत अली ये हैं। ठीक है, उनका इख्तलाफ था, लेकिन सब कुछ के बावजूद आखिर में सुलह हो गया था, मामला हल हो गया था। तो किसी भी शख्स को सहाबाए किराम के ख़िलाफ़ ज़बान दराज़ी करने की क़तन इजाज़त नहीं। सहाबाए किराम के ख़िलाफ़ जो गुस्ताखी करेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम हुकूमत से भी अपील करते हैं कि उनके ख़िलाफ़ मुक़दमे सख्त से सख्त किए जाएँ और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ताकि इन चीज़ों से ये लोग बाज आ जाएँ। अल्लाह ताला से दुआ गो हो कि अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत, सहाबाए किराम के तौर तरीक़ों, उनके नक्श कदम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।